दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होगा कि 2021 का ओलंपिक हुआ था। इंडिया ने उसमें गोल्ड जीता था। नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो करी थी, एंड ही बिकेम वेरी फेमस कि इंडिया ओलंपिक में। माय क्वेश्चन वाज वेरी स्पेसिफिक कि विल इंडिया बैग एटलीस्ट वन गोल्ड इन दिस ओलंपिक। क्योंकि हमेशा ये लगता आ रहा था कि भाई 2008 में जो वो चेस प्लेयर ने या किसी ने गोल्ड जीता था, उसके बाद से कभी किसी ने गोल्ड जीता ही नहीं। I will now share the horoscope. It was a very true prediction, and first time I was trying to do it using my own brain, and the logic was very, very, simple. And let us see the horoscope. Let me just share it, and this is the prediction I made that time. You can also read it, and the number I took was 117. It is a random number. I will read it, and I wrote in my prediction that my pranams to Guruji KSK Sasni ji that India should win a gold. And I have written that I do not know how to predict this, but the 6th and 11th and the Lagna curse should be connected with the 11th house, Sun, and 10th house. And I chose Sun because Sun represents gold. And the Lagna is in the number I took was 117. And the Lagna is in the Mercury sign, moon star, Mercury sub. Mercury is in the 10th house. Mercury is conjoined Sun in the 10th house in the sign Cancer. The sixth ka sublord is Jupiter. It is retrograde, but it is in the star of Mars. Mars is in the 11th house. The 11th ka sublord is Venus. It is Venus is in own star and in the 11th house in the horoscope. Jupiter is in the sub of Sun in the 10th house. Thus, we say that India winning gold or not in Tokyo Olympics, there is a proper connection of sixth cusp with the 10, 11 houses and a very strong connection. So, win was there, but whether gold will come or not. So now I took the ruling planets. What are the ruling planet of that day? So when I was seeing the horoscope, the ascendant star was moon, ascendant was Mercury, moon star was sun, moon sign lord was Venus, and day lord was moon. So sun was coming as moon star lord. There was at least one sun coming. So that is the reason I made that prediction that I am very much sure that India will bag at least one gold in this Tokyo Japan Olympics 2021, and it became correct. Neeraj Chopra won, actually brought gold for India. Uh, this is the beauty of KP. If you have a very serious question, if you have a very straight question, if you have a very deep desire to know, then KP Horeri is always 100% correct. It never goes wrong. We in our calculation can go wrong, but we have to always keep thinking, keep logically thinking, and you know think more and read more to become a good predictor. End of the day prediction ही सब कुछ होता है कि आपको प्रिडिक्शन कितना सही है, उसी से आपके कैलिबर को आगा जाता है। जैसे कि एक फाइटर को, बॉक्सर को उसके बॉक्सिंग से, एक डॉक्टर को उसके ऑपरेशन स्किल से, वैसे ही एस्ट्रोलॉजर के लिए उसके प्रिडिक्शन की करेक्टनेस ही उसका आईना होती है। हाउ बट गुड एन एस्ट्रोलॉजर इज, एंड केपी सिस्टम इज द ओनली सिस्टम बाय विच यू कैन गिव करेक्ट प्रिडिक्शंस। और कि मैं केपी सिखाता हूँ। आई टेक ऑनलाइन क्लासेस ऑफ केपी, एंड इफ यू वांट टू लर्न यू कैन लर्न फ्रॉम मी। एंड दिस इज व्हाट दिस प्रोडिक्शन इज ऑल अबाउट। एंड इफ यू लेट मी जस्ट डू इट इन हिंदी ऑल्सो। सो मित्रों, ये जो 2 अगस्त का दिन था, लेट मी जस्ट सी व्हाट वाज द डे। यस, 2 अगस्त 2021 का दिन था। और मैंने मेरे मन में ये आ रहा था कि क्या भारत इस ओलंपिक में, 2021 का जो ओलंपिक था, उसमें कोई गोल्ड मेडल जीतेगा या नहीं। तो मैंने ये प्रेडिक्शन शुरू करा, और मैंने अपने गुरुजी महाराज जी महाराज जी को, केएसके जी को, साहसने जी को, सभी को प्रणाम करा। महाराज जी को करे बिना तो कुछ करते ही नहीं है। तो और मेरा क्वेश्चन था बहुत स्पेसिफिक कि क्या इंडिया इस ओलंपिक में गोल्ड जीतेगा, एंड इट वाज, किसी को पता नहीं था। एवरीबडी वाज हैविंग द फिंगर्स क्रॉस्ड, सभी लोग असमंजस में थे। तो मैंने जो नंबर चूज करा वो 117 था। और मैंने अपने प्रेडिक्शन में लिखा भी है, यू कैन रीड हियर, कि मुझे नहीं पता है इसको कैसे करना है, लाइक हाउ टू रीच, बट सिक्स, 11th और जो लग्न के कस्प है उन सबको 11th हाउस से कनेक्ट होना चाहिए। सूर्य का होना जरूरी है बिकॉज ऑफ गोल्ड, और 10th हाउस का भी बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। तो 117 नंबर का ये हॉरोस्कोप है। मैं एक फ्रेश हॉरोस्कोप बना के इसमें दूंगा। और द लग्ना इज इन द मर्क्यूरी साइन। जो लग्न है वो बुध का राशि, बुध की राशि है, चंद्रमा का नक्षत्र है, और बुध ही उसका उपनक्षत्र है। बुध जो है दशम भाव में बैठा हुआ है। बुध सूर्य के साथ कंजॉइंड है, संयुक्त है, और दशम भाव में है। दशम भाव में जो राशि आ रही है वो कर्क राशि आ रही है।
छठे भाव का जो नक्षत्र स्वामी है गुरु है, वो वक्री है, लेकिन उसका जो नक्षत्र स्वामी है वो मंगल है। मंगल लाभ भाव में बैठा हुआ है। द 11th का सबलॉर्ड जो जो 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है वो शुक्र है। अगर हम शुक्र को देखें तो शुक्र भी इस उस दिन अपने ही स्टार में होना चाहिए था। यस, वीनस इज इन ओन स्टार। तो शुक्र भी अपने स्टार में था, और शुक्र जो है इस कुंडली में हम देखें तो ओन स्टार और 11वें भाव में बैठा है, सीधे सीधा 11वें भाव का कनेक्शन आ रहा है। जुपिटर इज इन द सब ऑफ सन। गुरु जो था उसका जो नक्षत्र स्वामी सूर्य था, और वो दशम भाव में था। हम यहाँ पे देखते हैं इस छोटे से प्रेडिक्शन में कि जो छठा भाव है उसका 10 और 11 के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बन रहा है, लेकिन अभी भी इसको और वेरीफाई करने के लिए रूलिंग प्लैनेट्स देखें। रूलिंग प्लैनेट्स कृष्णमूर्ति जी की देन है हम सभी ज्योतिषियों के लिए, जो एक वास्तव में एक दैवीय सहायता होती है, और ये कभी भी गलत नहीं होती। हम ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, हमारी सोच, हमारा सोचने का तरीका और हमारा ज्ञान, उसके कारण हम गलत हो सकते हैं, हमारे ज्ञान के अहंकार के कारण हम गलत हो सकते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति कभी गलत नहीं होती। मेरे पास इसके सैकड़ों उदाहरण है, सिर्फ मेरे नहीं, दूसरे कृष्णमूर्ति ज्योतिष जो मेरे बहुत सारे मित्र हैं पूरे भारत में, उनके प्रेडिक्शंस भी सही गलत होते रहते हैं, लेकिन अधिकतर जब गलती हुई है तो सिर्फ देखने, सोचने, समझने और घमंड के कारण हुई है। तो घमंड से एक ज्योतिषी को हमेशा दूर रहना चाहिए, अहंकार से दूर रहना चाहिए। तो उस दिन हम देखें रूलिंग प्लैनेट थे, लगन का जो नक्षत्र स्वामी था चंद्रमा, लगन था बुध, चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी था वो सूर्य था। यहाँ पे एक बार सूर्य आ गया तभी मुझे लगा कि गोल्ड तो पक्का आएगा। और मून का जो साइन लॉर्ड था चंद्रमा शुक्र की राशि में था, और जो डे लॉर्ड था चंद्रमा था। मतलब सोमवार के दिन मैं ही प्रेडिक्शन कर रहा हूँ 2 अगस्त 2021 को सोमवार रहा होगा, और इसके बाद होने वाला था। और इसी में उसने गोल्ड जीता था, और भारत को कम से कम पहला स्वर्ण पदक मिला ओलंपिक में 2008 के बाद। तो मित्रों, इस प्रकार से कृष्णमूर्ति ज्योतिष बहुत ही सटीक ज्योतिष होता है। इसका जो होरेरी शास्त्र है, जो प्रश्न ज्योतिष है कृष्णमूर्ति पद्धति का 1 से 249 के बीच में, वो बहुत सटीक होता है। मैं कृष्णमूर्ति ज्योतिष सिखाता हूँ ऑनलाइन, आप चाहें तो सीख सकते हैं। एक ज्योतिषी को उसके फलादेश से ही जाना जाता है, जैसे कि एक डॉक्टर को उसके ऑपरेशन की स्किल, उसके डायग्नोसिस से जानते हैं, वकील को उसके केस लड़ने की क्षमता से जाना जाता है, केस जीतने की क्षमता से जाना जाता है, वैसे ही एक ज्योतिषी का सही पैमाना उसके सही प्रेडिक्शंस होते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे प्रेडिक्टर बने, तो मुझसे आप सीख सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे, और तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।